जर्नी ऑफ अ डॉक्टर जो नीट से शुरू होता है, करेक्ट है? 16 लाख लोग एग्जाम देने बैठे हैं। नीट, when you started your journey, you thought NEET is the way to become a doctor. By now, you would have understood that NEET is actually a filtration system wherein 16 lakh students jump into the system, and how many come out of the system? 35 to 36,000 students who are successful, which is around 2.2% of the total aspirants. बाकी के 98% students, they are going to be filtered out of the government medical colleges. That's your plain main aim for which you have been studying for the last 2 years. So what happens to all the students? You must understand that in this journey of becoming a doctor, what is happening to the students in the last so many years? You have got to understand this. Everybody's aim is plan A. Need score 560, 550 plus. I get into the government medical college via merit, and I have achieved what I was, supposed to. Of course, let me tell you, you would have achieved. It's a very happy moment, but it is only you're talking about MBBS. What about the PG? What's your final goal? PG. Remember, do not think your destiny is MBBS. You have to specialize in some or the other lines to ensure that you get your value for the degree, you get your respect as a doctor, and you get money and a career. So you have to think about. सबको पूछूंगा क्या बनना है, everybody is going to say cardio, neuro, gynec, these, that, very nice fancy names you've got. Some 79 specializations are available, correct? Somebody wants to become a surgeon, somebody a neurosurgeon, pediatric surgeon, so many, and even up to super specialty. But right now, everybody's minimum requirement is post graduation is the dream, and MBBS is just a stopover journey. So right now, the first thing is NEET merit. If I don't get, because 2.2% of the students are going to get into it, what will happen to the rest of the people? Here also open category and reserved category. So there is a huge competition that you are going to face in this entire thing. What will happen? End of the day, you will start, if you are not able to get 550, 560, your attention will automatically get into the private colleges. Now, when you start looking at them, you will find 60 to 70 lakhs as the minimum cost to become a doctor from a private college or a deemed university. So how are you going to afford these kind of things? There are 31,000 seats available, but 40% of these seats do get vacant because people don't have that kind of a money to pay. इतना पैसा नहीं है पे करने के लिए सबके पास, और ये सिर्फ MBBS के लिए है। PG का 1.5 करोड़ अलग, प्राइवेट में PG में पढ़ने के लिए 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगता है. So those people who do not have merit or who do not have so much of money, what do? They will opt for the third option given by the Medical Council of India. So Medical Council of India defines the list of universities, colleges where you can study, government, private, and abroad, all three types of universities and colleges, and you can practice back in India. So ये basically list है, करीब करीब इंडिया में 550 कॉलेजेस का है, और बाकी के पूरे दुनिया में 450 कॉलेजेस का है. 450 plus colleges you can become a doctor. Now something happened, some rule changed between 2018 to 2019, which made most of the students shift their private colleges decision to abroad. Are you aware about this change in rules? Anybody is aware about these rules? So what happens to the people? Let's finish that first. 10 lakh people say, boss, it's not my cup of tea. This journey is too tedious. Mere se nahi hoga, I am getting into the BSc. Now remember, these people who are completely sure that I don't want to go to abroad, I don't want to study, I'm not going to get into merit, I don't have money, what am I going to do now? I still want to become a doctor. You are going to get into BSc, still there are ways to become a doctor. Okay, so what we are trying to do is visualizing right now what has happened to the students. So 16 lakh students gave examination every year.
What happened to them? I hope it's very clear. Now you know these are the 5-6 things that will happen to you also. So do we want to do BSc? Then can we continue with the same dream of doctor? Do we want to repeat in case we fail to get 550? Then also we can continue to dream to become a doctor. Or do we want to compromise? If I don't get 550, if I get 400, I'll just take in dentistry and then say, "Bas sir, dentist ban jata hu." Or do you want to go to MBBS abroad? Because large number of MBBS seats are secured over there. So a lot of students go here, and we are going to talk about this one because suddenly in 2019, the rules changed, and now everybody rushing towards. If you don't feel merit is there, if you don't feel money is there is a guaranteed way to become a doctor. So we are going to understand this aspect also. Okay, guys, let's go forward now from here. This is the change which happened in 2018 to 2019. As you can see it on your screen, in 2018, if I had studied in MBBS in India in government or private, I got a degree. I simply submit my degree certificate to the Medical Council of India, and they issue me the license. There is no problem. So I can practice, and even I can apply for PG. Okay, this was the rule. But if I came from abroad, from MCI approved college also, still I had to give one examination, which is a license examination, FMG, Foreign Medical Graduate Examination, MCI screening test. If I qualify, then only I can get a license. In practice, that means 2018, people were not that keen to go to abroad because they were afraid about this examination. Their first choice was always in India. Even if it costed 60 to 70 lakhs, people sold their houses, people sold their land, their savings, everything was put in and given to the private colleges. Chalo theek hai, बच्चे का career बन जाएगा. 2019 में scene बदल गया. Whether you are coming from India, whether you are becoming a doctor from abroad, everybody will give one common examination called National Exit Test. If you qualify, you get a license. And if you come in merit, in the same exam, you get into PGE. Same exam will decide your final fate of your career. You get a license, and in case you don't qualify, sit at home. You cannot practice, you cannot work, you cannot diagnose. Without license, you can't do. Degree is not sufficient for a doctor. You have to get the license, so you have to pass the license examination. Till 2018, this license examination was applicable only for the students who came back from abroad. If you keep in touch with the new rules of the land which are passed in our parliament, this will help you a lot to design your own journey, understand the best options that you have. We can of course learn this out here on the today's webinar. I'll try to showcase to you. Okay, let's Google it for you right now. NMC bill passed in Rajya Sabha in 2019 for the journey of the doctor or the examination for passing license examination, for getting the license, as well as the post-graduation seat. If I want to become a surgeon, now whichever country I pass from, whether it is MBBS from India or Russia, Ukraine or Belarus or wherever you pass from, you have to give one license examination called National Exit Test. It's going to take slightly longer time to get downloaded, but this is the way you do your research. Hopefully we are able to download this very well. Otherwise you can do a Google, and you can just type the same thing, NMC results and all those things. Okay, let's see if it's getting downloaded quickly. अगर ऐसी एग्जाम है कि जो कंपलसरी है for you to get the license, and the same exam is there for getting the PG seat, how much importance would you give to prepare for such examination? क्या आप जैसे 11th आपने नीट का तैयारी किया, वैसे ही आप MBBS के दौरान would you like to prepare for such an examination which is like license? For India it is next, for US it is USMLE. So every country has its own license examination. I just want to get whether you have understood the whole concept of license examination.
You can participate in the poll and make me understand whether you have understood what I'm trying to explain you. Please be honest enough to participate when you participate in the polls so that we can actually explain you right things, okay? I'm sharing the results with you. So as you can see, 69% of the people have understood that it's a very important examination and there is no point in doing MBBS. If I don't get the license, there is no point in doing MBBS. Sirf degree, what will it do for me? Nothing. 88% people are saying maybe I'll go start MBBS, then think and all those things, and then generally they forget that an examination is going to come after 5 years. They are going to forget it now. They'll not be serious to prepare for it, and then aram se they will try to prepare it at the end. And 3% says not important. They are not students, these are all agents. These 3% of the people are, they come on our webinar. हर रोज बेचारे लोग सीख के जाते हैं हमसे, ठीक है ना। वो बोलते हैं सर हमको डिग्री नहीं, डिग्री दे दो, लाइसेंस चाहिए ही नहीं हमको। सो हमको प्रैक्टिस नहीं करना है, हम सिर्फ टाइम पास के लिए डॉक्टर बनने आए हैं। So these are agents who wants to understand how we explain to you, and then they will, when you go to them, they will do some counteract and somehow तुमको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे. That's why they come to our webinars. Okay, so now read it for yourself. A key provision of the bill aims it seeks common final year examination to be called national exit test for admission to PG course and also obtaining practice license. ये इंडिया में अगर आप करते हो MBBS तो आपको अभी फाइनल ईयर के लिए there will be a common examination for every student. It also proposes final year MBBS examination to be treated as an entrance exam for PG, and the same exam will act like a screening test for the students who came from foreign medical colleges. So FMG replaced, NEET PG replaced, every exam replaced, simple for every student. One final year examination called next. It will decide your final destiny, whether you are becoming PG or not. I hope you understood now. Now I want to explain to certain people who said, sir maybe हम लोग तैयारी करें या ना करें, हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है. We are preparing for NEET. We have not even thought about preparing for next. You don't have to prepare for next now, but you have to start planning for next. When you enter into MBBS, all of you by the end of this webinar would know that everybody who wants to become a doctor can become a doctor. There is nothing which NEET is not going to stop you. Okay, I'll show it to you. The question is, even after entering into MBBS, are you going to take the right steps so that you can go right up to PG? You can get a license, or are you going to be just... So let's understand what happened to the students who went abroad and gave this license examination. In the last 4 years, what happened to those students? At least till 2018, this license to 2019 तक license examination नहीं था Indians को. It was just introduced in 2019 August. The government has given 3 years, so 2022 tak, it is still going to be conducted as FMG and all. But all of you, once you enter now, all of you will come out in 2025. So all of you will have to give a national exit test as I showed you. Now it is replacing FMG. So I have just checked what is the pass percentage for 4 years. Only 14%. 15,000 students go every year. 4 years, around 60,000 doctors came to India. Only 14% passed, around 8,700 passed. Rest, all the students, all the doctors failed. What are they doing now? They are sitting at home. What is the difference between those people who passed and failed? They also got a MBBS degree from abroad. They also got from abroad. They also studied in the same college, similar college. They also studied. They also spent 20 lakhs. These also spent 20-25 lakhs. Everybody spent the same money, same time, studied in the same college. Everything went off well, similar way. But these people did not, and these people did pass. Those people who passed are practicing. Those people who did not pass are sitting at home. सब करने के बाद में 50 से 52,000 डॉक्टर अभी भी घर में बैठे हैं, because the passing percentage is only 14% on an average for 4 years, not once. Have you understood now?
मे बी वाले प्लीज आप लोग संभाल के डिसीजन लो. यू कैन नॉट टेक दिस लाइटली. You will have to understand that this is not something which is going to happen so easily. MBBS journey is tough. It is filled with challenges, and you have to take the right actions at the right time to ensure that you are passing through all kind of challenges in a very easy and smooth manner. So how does it work? Let's understand now. When what happened, अभी सबको पता चल गया कि अभी नेक्स्ट एग्जाम तो सभी को देनी है. क्वालिफाई सभी को करना है, वेदर 70 लाख बन के एमबीबीएस करूं या 20 लाख देके एमबीबीएस करूं अब्रॉड में. सो नेक्स्ट तो सबको देना है, तो मैं क्यों 70 लाख रुपया इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में करूं. सो दिस बिकेम प्लान बी सडनली फॉर एवरीबॉडी. इवन नाउ hundreds of students have already booked their seats कि in case मेरे को इंडिया में न मिले तो please ensure that I don't waste my year. I will go abroad and study. And how will you go in this corona time? अरे बाबा पहला semester can be in online. I don't waste my academic year is much more important क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी है. 5 से 6 साल तो सिर्फ एमबीबीएस की है, 3 साल आपका एमडी एमएस. गैप अगर बीच में या आगे पीछे हो गया तो 10 साल की जर्नी में आई डोंट वांट टू ऐड वन मोर ईयर ड्यू टू कोरोना. आई fill up one seat in the topmost world ranked universities because the costs are low. Exams, there is no entrance examination. I just have to qualify for NEET and my admission is confirmed. The colleges are approved on the list of MCI, Medical Council, and if you go to developed countries, you are going to get fantastic infrastructure. There is no doubt about it. Medical Council of India has approved universities in every country, even Pakistan, Kyrgyzstan. Students from UP and Bihar go to Kyrgyzstan. Students from North go to countries like Georgia, where there is no facilities available. So agents जो हैं वो आपको यहाँ वहाँ हर जगह पे भेजेंगे. Medical Council of India has given a list of 450 universities, okay, abroad. अब आपको समझना है कि इसमें से जाने लायक सिर्फ 50 है, इसमें से डस्टबिन में डालने लायक 400 है. अब आप मुझे बताओ आप कैसे रिस्क लोगे. कहाँ जाऊं सर, मैं फॉरेन जिंदगी में नहीं गया. आप बोलोगे सर आई हैव एब्सोल्युटली नो नॉलेज अबाउट इट. पहले मुझे ये समझाओ, मैं अब्रॉड का बताऊं उसके पहले अपनी करियर जो है, क्या आपको पीजी तक का अभी करियर का रिक्वायरमेंट प्लानिंग जरूरी लग रहा है? क्योंकि नेक्स्ट एक ही एग्जाम है कि जिसमें से आपको लाइसेंस भी मिलेगा और पीजी भी करना है. अब आप करियर प्लानिंग पीजी तक करोगे यार, अभी भी एमबीबीएस तक ही रहना है. धीरे धीरे जैसे वेबिनार आगे बढ़ते जाएगा आपको इनसाइट अपने लाइफ की मिलते जाएगी, एजुकेशनल करियर की. ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप अपने फंडा क्लियर होंगे तो नीट और नीट के आगे के 10 साल उसका पूरा पिक्चर आज हमको क्लियरिटी के साथ में देखना है. अगर हम सही तरीके से देखेंगे तो हमारे एम्स सही तरीके से फॉर्म होंगे. छोटा नहीं सोचेंगे, हम बड़ा सोचने की कोशिश करेंगे. ड्रीम बड़ा रखना चाहिए, कदम भले छोटे, एक 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 कदम लेके हम लोग एंड तक डेस्टिनी तक पहुंच जाएंगे. ठीक है ना. सो डेस्टिनी इतना जल्दी नहीं पहुंचने वाले, वो भी मैं बताता हूँ. बड़ा मेहनत का काम है ये. ठीक है. I'm going to close this poll right now in another 5 seconds exactly. Here you are. 96% of the students have understood that yes, career planning is till PG is must right from the beginning. यार सिंपल सा हिसाब है. आपका MBBS के अंदर 19 सब्जेक्ट है. उस 19 सब्जेक्ट के ऊपर आपका एग्जिट एग्जाम है. ये 19 सब्जेक्ट आपको 1 से लेके 5वें साल तक सिखाया जाएगा. प्रोग्रेसिवली सीखोगे. ऐसा नहीं है कि 19 के 19 सब्जेक्ट आपको 5वें साल में सिखाएंगे और आपको नेक्स्ट में याद रहेगा. आपको पहले साल में एनाटॉमी सिखाएंगे, वो क्या 5 साल बाद याद रहेगा? बायोकेमिस्ट्री सिखाएंगे 5 साल बाद याद रहेगा? फिजियोलॉजी सिखाएंगे 5 साल बाद याद नहीं रहेगा. या दूसरे साल में फार्मेक आएगा, पैथो आएगा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे. 5 सब्जेक्ट दूसरे साल में आएंगे, पहले साल में 3 सब्जेक्ट आएंगे. तो कहाँ से याद रहेगा? अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टूल दिया जाए कि जिसमें आप नेक्स्ट या तो यूएसएमएलई की तैयारी कर पाओ, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो चाहे आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, क्योंकि लाइसेंस एग्जामिनेशन अभी मैंडेटरी है.
तो आपको इसकी तैयारी एमबीबीएस के दौरान ही करनी है। लाइसेंस तो बेसिक नीड है ना। अब इसी एग्जाम में आपको पीजी की भी सीट मिल सकती है अगर सही तैयारी की, तो क्यों नहीं करोगे तैयारी यार। 96% समझ गए हैं कि यार यही तो एक एग्जाम है जिसकी तैयारी करनी है। नीट हो गया, 550 के ऊपर आ गया, इंडिया में गवर्नमेंट में सीट लिया, मैं नेक्स्ट या तो यूएसएमएल की तैयारी चालू कर दूंगा। अगर नीचे गया 550 के, मेरे को काम तो वही करना है, एमबीबीएस अब्रॉड में करूंगा और नेक्स्ट और यूएसएमएल की तैयारी करूंगा। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका डेस्टिनेशन यहीं से वापस पीजी तक जाने वाला है। तो ये तो एग्जामिनेशन, आपको लाइसेंस एग्जामिनेशन बीच में आने वाला है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो या अब्रॉड में पढ़ो। आई होप फंडामेंटल्स क्लियर हो गए। अभी 4% को मैं समझा रहा था, बट मुझे पता है उसमें से 3-4% वाले जो एजेंट है वो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बेचारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि यार कोई जरूरत नहीं है, ये मोक्ष वाले कुछ भी बोलते रहते फालतू का, कोई जरूरत नहीं है, आपको लाइसेंस एग्जाम ऐसे ही पास कर देंगे। तो आप पूछोगे उनको कि सर तो 14% रिजल्ट क्यों आता है, बोला वो डम्ब थे, आप होशियार हो, आप निकल लो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन ही नहीं है सिखाने का। सो ऑल आई वाज टेलिंग यू इज एमसीआई has approved colleges which are government, which are private, which are 100 years experienced university, 1 year, 5 year experienced universities, teaching you in English. Some college will teach you in Russian. Every college has been approved on the list of medical colleges. Now you do not want, now which type of college you want to go, tell me. Would you like to go for a experienced government college जिसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ में अफिलिएशन हो, पेशेंट्स फ्लो हो, एक्रेडिटेशन बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हो, या कोई फालतू छोटी मोटी प्राइवेट कॉलेज जो 10-15 5-10 साल पुरानी हो, और 450 कॉलेज में से आपका जो कचरे डस्टबिन में डालने का जो है ना 400 का लिस्ट, वो छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख के आप कचरे में डाल दोगे। अगले 15 मिनट में आप सीख जाओगे कि भाई कौन से कॉलेज में जाना चाहिए आपको। इट इज सो सिंपल। अगेन 96% वांट्स टू गो टू गवर्नमेंट, और ये वही एजेंट्स हैं जो पुश करते हैं आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए। अब ये एजेंट प्राइवेट कॉलेज में क्यों पुश करते होंगे, एनी आइडिया आपको? उनको आपके करियर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपके जेब में जो पैसा है ना वो लूटने से इंटरेस्ट है। प्राइवेट कॉलेज में उनको कमीशन मिलेगा, गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर पता कैसे चलेगा मुझे कौन सी गवर्नमेंट कौन सी प्राइवेट? चलो 450 कॉलेज जो है उसका लिस्ट तो एमसीए की वेबसाइट पे है। चलो मैं ऐसी कंट्री में जाऊंगा जो डेवलप्ड है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, बराबर है। जैसे कोई आपको बोल दे पाकिस्तान जाओ, जाओगे? कोई आपको बोल दे किर्गिस्तान जाओ, जाओगे? नहीं जाओगे ना, आपको पता भी नहीं है वो कंट्री कहाँ है, करेक्ट है। बट बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे जाते हैं? करीब करीब 2000 बच्चे जाते हैं हर साल। कैसे जाते हैं? यूपी और बिहार से, और थोड़ा बहुत आंध्रा से। ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं से जाते हैं, गांव गांव खेड़े से। इनको आगे पीछे कुछ नहीं पता होता, वहां से स्टूडेंट्स आते हैं जो एक्चुअली एजेंट बन चुके हैं। इसे अंडर डेवलप्ड कंट्री जैसे किर्गिस्तान है, उससे तो अच्छा कजाकिस्तान में चले जाओ, एटलीस्ट डेवलप तो है, उससे बेटर तो क्वालिटी मिलेगा। कजाक में क्यों नहीं जाते? अगर एकदम लो कॉस्ट की बजट हो तो 5 साल का ही प्रोग्राम चाहिए तो मैं क्यों किर्गिस्तान में जाऊंगा? एटलीस्ट वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी तो मिलेगी मुझे कजाक में, मैं क्यों किर्गिस्तान में जाऊँ? सो अंडर डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को उल्लू बना के लेके जाया करते हैं। 2019 में जो स्टूडेंट गया, पहुंचने के बाद में समझ गया कि यहाँ कोई पढ़ाई बढ़ाई होने वाली नहीं है, ये तो इससे तो बेटर है मैं एजेंट बन जाऊं, थोड़ा पैसा कमा लूं, अपना पढ़ाई फ्री में करवा लूं, डिग्री मिल जाएगी, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। 2020 में वो इंडिया में आते हैं, आपको देंगे तू तो मेरे गांव का ही है, तू आ जा, मैं तेरे को संभाल लूंगा, तेरे को कोई टेंशन की बात नहीं है, बस $6500 $7000 लेके आ जाना, आप उनको कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, मैं। अरे भाई तू खुद ही एजेंट है। आपको कभी जिंदगी में नहीं पता चलेगा कि ये स्टूडेंट अभी एजेंट बन गया, क्योंकि 19 साल का एजेंट कभी देखा नहीं होगा आपने। वो अभी 2019 में गया है, अभी 1 साल हुआ है उसको एमबीबीएस में एंट्री करने को। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप सभी लोगों को मैं वार्न करता हूँ, ध्यान रखना, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको रास्ते में। दूसरे आपको फेक एजेंट्स यूट्यूब के ऊपर आके देखेंगे। मैं अभी से बता रहा हूँ, बहुत संभाल के रहो। आपको किसका सुनना चाहिए तो बताओ, आप किसका सुनोगे?
एजेंट का सुनोगे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुनोगे? आप अपना टैप करके, क्वेश्चन मार्क के ऊपर टैप करके मुझे सवाल का जवाब दो। आप किसी एजेंट का सुनोगे? समीर अहमद, करेक्ट। देखो देखो, राहुल प्रजापति, इशिका त्रिवेदी, एवरीबॉडी इज डन। सो वी मस्ट स्टडी समथिंग विच इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई एजेंट कुछ भी बोल दे तो हम कैसे सुनेंगे उसका? बराबर है। अभी एक लड़का है जो बोल रहा है, पता नहीं आप एजेंट हो या स्टूडेंट हो, समीर अहमद बोलता है कि मुझे किर्गिस्तान जाना है। अच्छा समीर अहमद, आपको इस कॉलेज के अंदर क्या अच्छा लगा, क्यों जाना है किर्गिस्तान में? आपको मैं बताता हूँ। आपको एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, चलो ठीक है, वहां पे आपका कोई दोस्त पर बैठ रहा है, पढ़ रहा है, वहां पे कोई आपको स्टूडेंट हो? नहीं नहीं राहुल प्रजापति, आप तो स्टूडेंट हो, मैं समीर की बात कर रहा हूँ। आई नो आयुषी, आई नो। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मिसगाइडेड आल्सो आयुषी। ओके, मैं आपको अभी जो सामने बता रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। आंख बंद करके आप ये फाइमर और WFME आप पढ़ो, इसको आप समझ जाओगे। ये अमेरिकन पूरे दुनिया की डायरेक्टरी है जिसमें सारे कंट्रीज का यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया है। आपको कोई भी, अभी समीर हो, चलो वो एजेंट हो, कोई भी हो, मैं तो आप सभी के बच्चों को, अभी इतने सारे बच्चे हैं, सभी लोग देख रहे हैं ना सामने कि क्या किर्गिस्तान वाला कोई आएगा तो मुझे क्या सर्च करना है? सीधा डायरेक्टरी सर्च करो। यहाँ पे सर्च किया, अभी हम लोग ने बोला 96% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट सर हमको तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाना है। करेक्ट है। आप देखो ये यूनिवर्सिटी है ही नहीं यहाँ पे, उसका नाम ही नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? वुड यू लाइक टू गो फॉर सच यूनिवर्सिटी? लेट्स सी अदर यूनिवर्सिटी। औश, कई बच्चे बिहार से औश भेजे जाते हैं। चलो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है, बेटर है, बट यार ये 20-30 साल पुरानी है, मुझे नहीं चाहिए। अपना पैरामीटर खुद सेट करो। अगर मुझे पढ़ाई करने जाना है इंडिया के बाहर, ठीक है, तो मुझे मिनिमम 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी दे दो, जिसको एक्सपीरियंस हो सिखाने का, जहां से हजारों डॉक्टर बन के अपने कंट्री में ग्लोबली प्लेस हो चुके हो, जो यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट हो, जो प्राइवेट ना हो, और जो इंग्लिश में सिखाती हो। इतने सिंपल 3 चीजें लगाओगे ना तो 450 कॉलेज में से 400 कॉलेज कचरे में निकल जाएंगे। सिंपल है, पर आपको पैरामीटर खुद के लिए सेट करना पड़ेगा। आपको किसी भी एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है। आपको प्लान MD तक करना है, जो लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, और MBBS तक का सपना नहीं, ऊपर देखना है थोड़ा सा। करियर को प्लान करके अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। और सिलेक्ट कैसे करोगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी दी है और वर्ल्ड डायरेक्टरी में अंदर लिखा हुआ है, बस उतना कर लो। आपको किसी भी आदमी की जरूरत नहीं है अपना करियर सेट करने के लिए। कोई भी कंट्री की कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। भाई ये कंट्री कहाँ है वो भी नहीं पता आदमी को, कहाँ से आप दोनों, वो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट लगी भी, कॉलेज भी, नाम भी नहीं है इसमें लिस्टिंग में। आप सोचो, आप कोई भी कंट्री रखो, यूक्रेन जहाँ पे सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, अपन वो सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, कई लोग बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट, आजकल बहुत बहुत एडवर्टाइजमेंट आएगी आपको उल्लू बनाने के लिए। तरास मेडिकल शेवचेंको, तरास शेवचेंको में चले जाओ, मैं आपको यहाँ वर्ल्ड डायरेक्टरी में तरास दिखाता हूँ। भैया आप डिसाइड करो, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। 2 साल पुरानी कॉलेज है, ये कॉलेज है, ध्यान रखना, ये जो कॉलेज है बहुत अच्छी है, बट उस वो मेडिसिन की कॉलेज नहीं थी। ये 200 साल पुरानी कॉलेज होगी, पर मेडिसिन तो 2 साल पहले खुली है भाई। नहीं चाहिए मुझे, मैं क्यों जाऊं इतने ही खर्चे में? अगर मैं 200 साल पुरानी मेडिसिन की कॉलेज में जा सकूं तो यार आई वुड प्रेफर दैट। करेक्ट है। आपको ये देखना है कि आपको कौन सी मिल रही है अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी। आप देख लो, 124 ईयर्स, ऐसा बहुत घपला होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर आपको तरास का बहुत बहुत ही प्रमोशन मिलेगा, बहुत लोग आएंगे तरास जाओ। अरे भाई 2 साल पुरानी मेडिसिन है, मैं नहीं जाना चाहता। सेम थिंग इज विथ रशिया ऑल्सो।
ये लवीव में उतने ही खर्चे में आप 150 साल, एक्चुअली 1784 की कॉलेज है, बट एमबीबीएस 124 साल से सिखा रहे हैं. इमेजिन द एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर्स who have already taught for 124 years in that college. What systems, what hospital affiliations, how many postgraduate, how much research, everything would have been there. आपको मैं सेम चीज बता सकता हूं. मैं रशिया के अंदर, रशिया में आपको ये जो अंडर बंडर जो एजेंट रहते हैं सारे, वो आपको देखेंगे. दो देखो, कजान फेडरल में जाओ, कजान फेडरल को टाइप करोगे आप, ढूंढोगे, तो कजान फेडरल कितने साल पुरानी है पता है आपको? 1804 की यूनिवर्सिटी है, 216 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है. बट ये मेडिसिन की नहीं थी. अब आप ढूंढो मेडिसिन कब से शुरू किया इसने? 2013 से. भाई नहीं चाहिए मुझे कचरा. ये भी एमसीआई अप्रूव्ड है. और आपको मैं कजान का दूसरा, कजान स्टेट देख लो, उसी के बाजू में यूनिवर्सिटी है. वो कितने साल पुरानी है? कजान स्टेट मेडिकल 106 साल से सिर्फ मेडिसिन सिखा रही है. बोलो कौन से में जाओगे? मेडिसिन सिखाने का 106 साल का एक्सपीरियंस और मेडिसिन सिखाने का 6 साल का एक्सपीरियंस. इसकी एडवर्टाइजमेंट कजान फेडरल की आपको जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, और कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को सिर्फ मोक्ष प्लेस करेगा. सो आपको यही चीज खुद रिसर्च करनी है कि कचरे में जाऊं, क्योंकि आपने देखा 8,700 पास हुए, 52,000 फेल हुए. इसके दो कारण थे. जो यहाँ पे गए ना, मैक्सिमम लोग कचरा यूनिवर्सिटी चूज किया. उनको एजेंट ने बोला ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे चले जाओ, तरास बहुत अच्छा है, कजान फेडरल बहुत अच्छा है, किर्गिस्तान बहुत अच्छा है, जॉर्जिया बहुत अच्छा है. ये कचरे में डाल डाल के लोगों का एक करियर का खत्म कर डाला है पूरा. यू कीप योर फंडामेंटल सिंपल. फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, लेट अस सी व्हाट हैव यू हर्ड. अगर आज आपको ऐसी सिचुएशन आए कि नीट के अंदर आपको 550 नहीं आया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं 98% लोगों को तो ये होने ही वाला है कि भाई वो कट ऑफ से नीचे रहे. करेक्ट है, क्योंकि 2.2% ही जाने वाले हैं अंदर. तो अगर ऐसा हुआ तो आप कौन सा कंट्री चूज करोगे? आपका कोई तो दोस्त गया होगा, यूक्रेन गया होगा, रशिया गया होगा, यूएस गया होगा, बेलारूस गया होगा. किसी को आप फॉलो करते होंगे, और जिसको फॉलो करोगे, जो बंदा फॉलो करेगा वो फंसने वाला है. अपना दिमाग भगवान ने दिया है, भूल मत जाओ. You have your own choice. You can do your own research. You don't need to follow anybody. Just because somebody else has gone there, you don't need to. I told you, I gave you the example of Kyrgyzstan because somebody made a mistake in 2019. He's going to rope in students in 2020. आपके लिए बहुत सुपर एग्जाम्पल है. मैंने शेयर किया, यूक्रेन 12%, रशिया 58% एंड यूएसए 31%. चलो यूएसए 31% मैं मानता हूं, क्योंकि यूएस जाने से सबको पता है कि मेरे को पीजी के टाइम पे 1.5 करोड़ रुपया मिलता है. सामने से मिलता है, पता है ना आपको, पीजी में स्टाइपेंड मिलता है 1.5 करोड़ रुपया यूएस में. पर रशिया में 58%. चलो ढूंढते हैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है रशिया की. रशिया में जो हमारी हमारी जो एम्बेसी है, वो क्या बोलती है, मुझे रशिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए, या प्रॉब्लम्स क्या फेस करेंगे रशिया में. 58% of the students who are attending my webinar today, they have said, sir, मैंने सुना है कि रशिया जाते हैं बच्चे, मैंने सुना है कि रशिया एडवांस्ड कंट्री है, सुपर पावर है, आई ऑल्सो मे नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू गो टू रशिया. आप मुझे समझाओ कि रशिया कैसा है. ये मैंने आपके सामने रखा है, आप पढ़ो पहले, अभी शांति से. अभी थोड़ा शॉक लगने वाला है 58% ऑफ द स्टूडेंट्स को. एंड कीप योर माइंड शेयर absolutely open to the new things that you are going to listen, because no agent is going to tell you. एजेंट का क्या होता है धंधा भाई, पैसा लो और आपको यहाँ से भगाओ. ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट आपका ध्यान रखती है, एम्बेसी है वहां पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठी है. आपके इंटरेस्ट को रशिया के अंदर इंडियन एम्बेसी प्रोटेक्ट करेगी. आपको एडवाइजरी लिख के दी है, क्या लिखा है उसमें पढ़ो.
There is a publicity in India about English medium courses for medical studies in Russian Federation. Advertisement, promotions, seminars, calls. This is not correct. ये गलत है, ये सही नहीं है. मोस्टली लोकल लैंग्वेज में आपको रशियन इंस्टीट्यूशन सिखाएगी. मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ट्राई टू टीच यू, पढ़ो आप, ट्राई टू टीच फर्स्ट 3 years in English, फ्रॉम 4th year स्टडी इन रशियन लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, बोल्ड में लिखा है मस्ट बी प्रिपेयर्ड. ये गवर्नमेंट बोल रही है आपको अभी से, कल जाके वहां फंसोगे. अगर आप गवर्नमेंट के पास जाओगे तो यही खोल के दिखाने वाले हैं कि तेरे को एजेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन दिया है वो इंपॉर्टेंट लग रहा है. Was it not your duty? Is your career not serious enough? Are you not serious? Then why are you coming to us? There is a problem. So you will naturally ask, sir, मेडिकल काउंसिल में अप्रूव्ड कॉलेज है, समझो एक्स कॉलेज अप्रूव्ड है, आप बोल रहे हो वही एक्स कॉलेज के अंदर इंग्लिश में नहीं सिखाएंगे, रशियन में सिखाएंगे. फिर एमसीआई बोल रही है रशियन में पढ़ो, इंडिया आओ, फिर लाइसेंस एग्जामिनेशन भी पास करो. क्या ये मस्ती? Are you doing some joke with our career or what? What is going on? This MCI is also government body. Embassy is also government body. It is clearly telling you. आगे पढ़ो. Some institutions which claim to have dual medium do not even have requisite faculty to teach English even for first 3 years. 6 के 6 साल रशियन, या तो 3 साल इंग्लिश प्लस 3 साल रशियन, या तो फिर 6 साल इंग्लिश वाली कोई है तो बता दो. पूछ लेते हैं एम्बेसी को. तो हमने पूछा, सर कुछ है ऐसा या रशिया आना बंद कर दे? हमारे यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी है. एक ने जंप मारा रशिया में तो उसके पीछे पीछे 100 दूसरे जंप मारने वाले हैं. ये इंडिया है, बराबर है. 58% यही सोच रहे, सर सुना तो है रशिया का, पर ये कभी किसी एजेंट ने बताया नहीं. तो हमने एम्बेसी को बोला, सर क्यों अपना देश का पैसा बर्बाद कर रहे हो? Why don't you tell us the actual fact? Where is our students? Is it worth coming to Russia? 2019 में रशिया, अपनी इंडियन एम्बेसी इन रशिया ने रेटिंग लिस्ट पब्लिश की. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम. जो रेटेड हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटी है वहीं में जाना है. अगर आप लोअर रेटिंग वाली यूनिवर्सिटी लोगे तो आपको नहीं मिलने वाला. इंग्लिश में मिलना इम्पॉसिबल है. आप गूगल करके देख सकते हो, रेटिंग लिस्ट ऑफ रशियन मेडिकल स्कूल्स एज पर इंडियन एम्बेसी. अभी इंटरनेट मेरा स्लो है इसलिए मैं अभी, ये देखो यहाँ पे घूम रहा है, बट लेट इट स्टार्ट ऑफ. ये रेटिंग लिस्ट अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको क्लैरिटी के साथ में समझ में आ जाएगा कि अगर मुझे रशिया जाना है तो मुश्किल से 6-7 यूनिवर्सिटीज ही है. एमसीआई ने तो 50 यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दिया है जो अप्रूव्ड लिस्ट है, बट मुझे सिर्फ टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज में जाना है. आई डोंट वांट टू गो टू द बॉटम. सो देयर आर 2 मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ये दोनों मिनिस्ट्री के अंदर टोटल मिला के कुछ 48-50 यूनिवर्सिटीज हैं जो एमसीआई की अप्रूव्ड है. हर एक में ऐसा लिस्टिंग दिया हुआ है. आपको सिर्फ टॉप वाली कॉलेज में जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही अगर आप बॉटम में गए तो आपका प्रॉब्लम चालू हो जाएगा. आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मस्ट रिसर्च. विदाउट दैट आपका हालत खराब हो सकता है. जैसे वो 52,000 डॉक्टर जो अटक गए हैं इंडिया के अंदर, वैसे ही आपका अंत नहीं आना चाहिए करियर का. You have to know the facts very well. तो कैसे, कितने सारे कंट्रीज हैं जहां पे जा सकते हो आप. बहुत सारे लोग आएंगे आपको बोलेंगे जॉर्जिया चले जाओ, बहुत ऐसे भी आएंगे चलो मॉरिशियस चले जाओ. बहुत मन करेगा यार मॉरिशियस, अरे घूम के चले जाओ बट पढ़ने मत जाना. सिर्फ 12 लाख का बस्ती है वहां पे पूरे कंट्री में. अपने गांव में रहता है ना उतना एक सिटी, एक पूरा कंट्री है. कहाँ हॉस्पिटल, कहाँ प्रैक्टिकल, कहाँ कुछ नहीं. यहाँ का एमसीए का पासिंग रेशियो नील है. नेपाल में 50 लाख रुपए का कॉलेजेस है, प्राइवेट रुपया. अभी आप जाएंगे कि 50 लाख में तो आदमी यूएसए तक मेडिकल पीजी खत्म करके आ सकता है आराम के साथ में. किर्गिस्तान का तो हाल मैंने बता ही दिया. फिलीपींस का तो थोड़ा सा
मुझे बताने दो, ये स्कैम है इंडिया का। सो दिस इज अ नेगेटिव लिस्ट ऑफ कंट्रीज। यू कैन गो, रशिया जाना है, इसमें भी चूज करो, रेटिंग्स चेक करो। यूक्रेन जाना है, इसमें भी एक चीज ध्यान रखो, आपको वेस्टर्न पार्ट में जाना है, ईस्टर्न पार्ट में वॉर जोन है। तो ऐसे एक एक कंट्री चेक करके कहाँ जाना चाहिए वो आप पहले तय करो। ऐसा नहीं कि मेरा फ्रेंड उधर जा रहा है तो मैं भी वहां पे चला जाऊं। ये आ गया आपका लिस्ट ऑफ, अगर रशिया जाना है 58% ऑफ द स्टूडेंट्स, इट इज बेटर टू गो टू यूक्रेन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोअर क्वालिटी। जाना है तो ऊपर की टॉप 4 पकड़ लो, बाकी नीचे का कचरा छोड़ देना। महंगा होगा तो वांदा नहीं, बट पढ़ने लायक होगा। अगर आप ऐसे फालतू कचरे में गए, 12 लाख में डॉक्टर, 15 लाख में डॉक्टर, वो डॉक्टर भी वैसा ही रहेगा जो नेक्स्ट पास नहीं करेगा, वो 15 का 15 लाख वेस्ट जाएगा। यू विल बी गोइंग फॉर अ ट्रिप ऑफ योर लाइफ बट यू विल नॉट बिकम अ डॉक्टर। ओके, इफ यू डोंट बिलीव मी, go for YouTube, type this university and write frauds to Indian students। आपको इतने सारे, भूलना मत ये करने को, इतने सारे स्टूडेंट्स का फ्रॉड दिखेगा रशिया में, क्या उल्लू बनाया लोगों को। पर्म स्टेट सिमिलर प्रॉब्लम। सो आप क्या चौथे में जाना चाहते हो या 25 में जाना चाहते हो रैंक में, ये आपका डिसीजन है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप फिर से डिसाइड करो। ये पूरी एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। नंबर 1 यूनिवर्सिटी, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स दिस इज अराउंड 45 to 50 lakhs, which is not what we suggest you to do, but if you wish to go for the top end तो ये आप इसमें जा सकते हो। क्रीमिया सिर्फ 17 लाख रुपया, टॉप एंड बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एमसीआई पासिंग रेशियो। बेलगोरोद स्टेट, बस इससे नीचे जाओगे ये फालतू तांबो में जाओगे, मारी में जाओगे, मोर्डोविया में जाओगे, नोवोसिबिर्स्क में जाओगे, दीज आर नॉट द प्लेसेस। फार ईस्टर्न फेट मत जाओ भाई, जाओ ऊपर, लाइफ में नीचे नहीं जाना है हमको। सेम केस है दूसरे सारे यूनिवर्सिटीज का, दूसरे मिनिस्ट्रीज जो हैं, ऐसा ही आपके सामने है। तो एम्बेसी ने लिस्ट दिया है, those who want to go to Russia must prefer to see this list and then only finalize the university, without that it doesn't make, I hope it's absolutely clear to all of you। ये जो जर्नी ऑफ अ डॉक्टर है वो आपको कैसे दिखेगी। आपने 12th किया, 100% यहाँ पे जितने बैठे हैं सारे के सारे नीट क्वालिफाई करेंगे, उतना तो पता है। लास्ट ईयर सिर्फ 134 पे क्वालिफाई हो गए थे ओपन वाले, और 107 पे रिजर्व वाले। 720 में से इतना लाना है। अगर इतना भी नहीं लेके आए तो यार फिर क्या फायदा है। अनक्वालिफाइड हो गए तो उसका अलग से एक ऑप्शन है, बट यार इतना तो कर लो, क्वालिफाई कर लो तो डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर आप दो जगह से बन सकते हो, या इंडिया से या अब्रॉड से। 550 प्लस है तो इंडिया, 550 माइनस है तो अब्रॉड। करेक्ट। अब आपका बजट के ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा लाइसेंस एग्जामिनेशन तैयार करके कौन से कंट्री में फाइनली सेटल होंगे और पीजी करोगे। आपका बजट के ऊपर अभी से आप डिसाइड कर सकते हो। जब आप एमबीबीएस करोगे तभी कोई ना कोई लाइसेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे। अभी लास्ट हमने जो पोल लिया था, 96% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नाउ अंडरस्टूड कि लाइसेंस एग्जाम की तैयारी होना जरूरी है। मोक्ष ये कराएगा, आपको इंश्योर करेगा। 26 जुलाई को अगर अपनी नीट हो रही है, 27 जुलाई को एवरी वेबिनार अटेंडी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस एग्जामिनेशन का कंप्लीट पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। चाहे आप इंडिया में हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, आपको नेक्स्ट या तो यूएसए मिले या तो जर्मन। ये तीन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पे, इंडिया, यूएस और जर्मन, ये तीन ही कंट्री में मैक्सिमम डॉक्टर्स अपना पीजी करके वहीं पे सेटल हो जाते हैं। सो आपका करियर आपके सामने है। जो भी बिल्ड करो या जो भी प्लान करो अपने करियर के लिए, बहुत सोच समझ के करना। छोटे मोटे फालतू एजेंट्स आपकी करियर नहीं, आपके पैसे लूटेंगे। यूट्यूब को देख के आपकी करियर नहीं बनने वाली, और पीछे के स्टूडेंट्स को देख के आपकी करियर हर्ड मेंटालिटी से बाहर आ जाओ। खुद का रिसर्च करो, अंडरस्टैंड करो लाइसेंस एग्जामिनेशन को, उसको कैसे पार करेंगे वही मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आखिर
you don't want to remain in that 14% people. Yeah, 86% of the failures, you want to get into the 14 people who are percent who are pass. Correct? जिसको लाइसेंस मिला, जो पीजी तक गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. You don't want to be here. Correct? So you choose your college correctly when it is going for abroad. अगर इंडिया में मिल गया तो सिर्फ गवर्नमेंट चूज करो, अब्रॉड में भी सिर्फ गवर्नमेंट चूज करो. आपका जो भी है, मैंने पहले ही बताया, एम्बेसीज दिखाई, कोई भी कंट्री की एम्बेसी इंडिया की होती है, उसमें पहले एडवाइजरी चेक करो. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप मोक्ष को फोन करो, आपको लिंक भेजेगा, पढ़ो पहले गवर्नमेंट की लिंक कौन सी है. क्योंकि जैसे फिलीपींस है, अभी इतना बड़ा स्कैम जैसा है, वो एक्चुअल में कितना उसमें सच्चाई है वो आपको खुद समझना पड़ेगा. गवर्नमेंट क्या बोल रही है, एम्बेसी ऑफ फिलीपींस क्या बोल रही है, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस क्या बोल रही है, क्योंकि एजेंट क्या बोल रहा है उसके ऊपर भरोसा मत रखना. ठीक है गाइस? सो आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन. आपका बजट कितना है, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन इंडिया में रहेगा, कौन यूएस तक जाएगा और पीजी में 1.5 करोड़ कमाएगा, और कौन जर्मनी में जाएगा. ये डिपेंड आपके आज के बजट के ऊपर दिखेगा. योर ड्यूटी इज टू स्पीक विथ योर पेरेंट्स. सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि संडे को हमारा हर संडे को एक मेगा वेबिनार रहता है, विच इज आपके जितने सवाल आएंगे, ठीक है, और आपके पेरेंट्स को जितने सवाल होंगे, आई होप यू आर गोइंग टू ग्रास्प दीज थिंग्स टुमारो, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, come back to us on Sunday, and I will again take a very short brief webinar on Sunday to address to your queries and your parents questions. तो करियर के बारे में जो सवाल हो वो मुझे पूछना. ऐसा नहीं कि सर मेरे को नीट में 350 आएंगे तो मैं कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ये सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है. मैं करियर ओरिएंटेशन दे सकता हूँ बढ़िया तरीके से. ठीक है? सो ऑल ऑफ यू गाइज, I'm just sharing it with you. 81% of you are going to come back to India if you go abroad, or are going to be in India through 550 plus. Okay, but it's still you will study for next in India, or if you are doing your MBBS in India, then you might as well study for USMLE, क्योंकि 20 लाख में तो आप US में PG कर रहे होंगे अगर इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया तो. अगर आपके पास 30 से 40 लाख रुपया है तो आप MBBS अब्रॉड प्लस USMLE कर सकते हो, PG इन अब्रॉड. अगर करीबियन के थ्रू जाना हो तो आपके पास बजट बहुत बड़ा चाहिए. सो गाइस, दिस इज हाउ इट इज प्लेस्ड. एंड माय लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई लीव ऑल ऑफ यू, क्या कुछ फायदा हुआ आप लोगों को इतना सारा टाइम देके? क्या आपको ये वेबिनार का फायदा दिखा? डिड यू लाइक इट? द कंटेंट्स वर गुड? Did you get the confidence that you will become a doctor for sure now? There is nothing which will stop you from becoming a doctor. What is your basic feeling? I just want everybody to participate. Last 5 seconds and I'm going to stop this. Okay, here it is. 54% very helpful, 23% helpful. मतलब 77% को लोगों को तो काफी help हो गया है. 23% are satisfied with the content and they may want to know more. All of you, those who are finding it very helpful, they are most welcome to come on Sunday. ठीक है? संडे को आ सकते हो. अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आगे कुछ करियर के बारे में समझना हो, या तो फिर आपको आपके पेरेंट्स के साथ में बात करवानी हो मेरे से, या कोई सवाल जवाब करना हो, तो संडे वी कैन हैव अ वेबिनार. ओके, थैंक यू गाइस.